سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم روڈرک بادشاہ قابض ہے۔ اندلس کا راستہ کھل چکا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے لیے راستے کھول دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے۔ طارق بن زیاد دنیا اسلام کا ایک بہادر جنگجو تھا۔ جب وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندلس کے ساحل پر پہنچا تو ان کے اس عظیم سالار نے ساری کشتیاں جلا ڈالی۔ اب ان سپاہیوں کے پاس واپس لوٹنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اندلس کو فتح ہونا تھا یا ان سب کی شہادت تھی۔ یورپ کو ہم نے بیدار کیا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علم، ہنر، فلسفہ، سائنس، ریاضی، میڈیسن، یہ ساری چیزیں ہم نے سکھائی۔ یہ خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی، لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ انسانی تاریخ مختلف اقوام کے عروج و زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک قوم کا زوال دوسری قوم کے عروج کا سبب بنتا ہے، اور جب کبھی کوئی قوم دوسری قوم پر غالب آتی ہے تو وہ اس قوم پر اثر انداز ہوتی ہے اور اپنے تہذیب و ثقافت اور دین و مذہب کے گہرے اثرات چھوڑتی ہیں۔ اس کی ایک مثال اندلس یعنی مسلم اسپین ہے، جس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سالوں تک بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی اور مسلم تاریخ کے ایک سنہرے دور کا آغاز کیا۔ اندلس کا چپا چپا مسلمانوں کے عظمت و شوکت کی آج بھی گواہ ہے۔ وہاں کے خوبصورت وادیاں، عمارتیں، فضا ندیاں اور ویران مسجدیں مسلمانوں کی عبرتناک تاریخ کی آوازوں سے آج بھی گونج رہا ہے۔ وہیں مسلمانوں کے زوال اور اندلس میں مسلمانوں کے دردناک خاتمے کی کہانی بہت ہی حسرتناک ہے۔ آج اسپین میں موجود اسلامی عمارتیں، مسجدیں اور کھنڈرات دنیا والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جو قوم آج خزاں کا شکار ہے اس کی بہار کتنی شاندار تھی۔ اندلس ایک ایسی تاریخ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی آنکھیں نم ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ 6 صدی عیسوی میں نبی آخر الزماں اور انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے شہر مدینہ میں ایک چراغ روشن کیا، جس کا مقصد پوری دنیا میں پھیلے ظلم و جبر اور جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا اور خدا کے بندوں کو بادشاہوں کی غلامی سے نجات دلا کر خدا سے جوڑنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے ہی آپ کے ساتھیوں نے عرب کے بڑے حصے کو فتح کر لیا، اور 100 سالوں کے اندر مسلمانوں نے مدینہ شہر سے نکل کر روم اور فارس کے 1000 سالہ حکومت کو گرا کر رکھ دیا۔ اسلام کی حکومت 3 بر اعظموں پر قائم ہو چکی تھی، جس کا مغربی کنارہ اٹلانٹک اوشن اور مشرقی کنارہ سندھ تک پھیل چکا تھا۔ ان فتوحات کا پوری دنیا میں مذہبی، فوجی اور کلچرل اثر پڑا جو بڑا گہرا تھا۔ مغربی علاقوں میں رومن حکومت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے بر اعظم افریقہ میں قدم رکھا اور کچھ ہی عرصے میں مصر کے الیگزینڈریا جیسے اہم شہر کو بھی فتح کر ڈالے۔ 711 عیسوی تک افریقہ کا شمالی حصہ مسلم خلافت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس وقت مسلم دنیا کی باغ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے دمشق شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ اس وقت افریقہ اور یورپ کے درمیان سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ مسلمانوں کو اسپین جیسے امیر اور انتہائی طاقتور علاقے سے دور رکھے ہوئے تھا۔ ان دنوں اسپین میں قوطی حکومت قائم تھی جو ایک عیسائی حکومت تھی۔ 711 تک اسپین میں قوطی بادشاہ وڈزا تخت نشین تھا۔ اس وقت اسپین کے عوام بدحال تھے، عمرہ عیاش پرست ہو چکے تھے، نچلا طبقہ حکومت کے ٹیکس سے پریشان تھے، عام لوگوں کی حالت غلاموں سے بدتر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پادری اور مذہبی رہنما بھی لوگوں پر ظلم ڈھاتے اور ہسپانوی عوام ان سے بدظن ہو چکے تھے۔ مظلوم عوام کسی طرح بھی اپنے حکمراں سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، لہذا سال 711 میں بنو امیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے اپنے بہادر سپہ سالار طارق بن زیاد کو 12,000 سپاہیوں کا دستہ دے کر اسپین فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔
तारिक बिन ज़याद अप्रैल 711 में सिपाहियों को लेकर स्पेन के साहिल पर उतरे और तमाम बहरी बेड़ों को जला दिया ताकि वापसी का कोई रास्ता न बचे। मुस्लिम सिपाहियों के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बाकी रहे थे, फतह या शहादत। चुनांचा 1 लाख मसीही लश्कर से मुसलसल 8 दिनों तक जंग हुई और सिर्फ 12,000 मुजाहिदों के सामने मसीहियों की अजीम फौज भाग खड़ी हुई। इस तरह इस्लामी लश्कर को फतह नसीब हुई। इसके बाद गरनाता और शुमाली स्पेन भी फतह हो गए और स्पेन के बड़े हिस्से पर इस्लामी झंडे लहरा दिए गए। अब हस्पानिया अमवी खिलाफत में शामिल हो चुका था। बहुत ही कम वक्त में मुसलमानों ने पूरे स्पेन को फतह करने में कामयाब हो गए। लेकिन तारिक बिन ज़याद के बाद अमवी खिलाफत का खात्मा हो गया और बनु अब्बास की हुकूमत आई। अब्बासियों ने हुकूमत संभालते ही अमवी खानदान के हर फर्द को चुन चुन कर कत्ल किया। लेकिन अमवी खानदान का एक शहजादा अब्दुर्रहमान छुपता छुपाता अंदलुस पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां अमवी शाही फौज उसकी मुंतज़िर थी। लिहाजा स्पेन में बनु उमैया की एक नई हुकूमत की नींव रखी गई। कुछ ही दिनों में इस पुरजोश नौजवान शहजादे ने पूरे स्पेन पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां मुसलमानों की एक नई रियासत कायम हुई। यहीं से मुस्लिम अंदलुस की अजीम सुनहरे दौर का आगाज होता है। उस ज़माने में बेशुमार अरबी और बर्बर लोगों ने अंदलुस हिजरत की। इस्लाम की तबलीग व इशाअत पर जोर दिया गया। खलीफा ने गरनाता शहर को खूबसूरत तरीन बना दिया। हज़ारों मदरसे, कुतुबखाने, मस्जिदें तामीर करवाई गईं। कुर्तुबा, मालका, सरकस्ता, अशबिलिया और जयान के शहरों में आला तालीम के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटियां कायम की गईं। जब यूरोप अय्याम जाहिलियत यानी डार्क एज में था, उस वक्त अंदलुस में मुस्लिम साइंसदां और माहिरीन जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के ऊंचाइयों को छू रहे थे। इंसानी तारीख में सबसे पहला कामयाब इंसानी ऑपरेशन अंदलुस के मुसलमान तबीब अबू अल कासिम अल ज़हरावी ने किया था और उन्होंने ही सर्जिकल आलात तैयार किए। अंदलुसी साइंसदां अब्बास इब्ने फरनास पहले इंसान थे जिन्होंने इंसानी तारीख की पहली उड़ान भरी और हवाई जहाज के बेसिक स्ट्रक्चर को पेश किया। रियाजी, ज्योमेट्री और कैलकुलेशन में भी अंदलुसी मुसलमान रियाजी दानों का अहम कारनामा है, जिन्होंने अरबी एदाद की ईजाद की, जिसकी मदद से बाद में यूरोप में गिनती और एदाद व शुमार की बुनियाद रखी गई। वो घड़ी जिसमें सबसे पहले 12 घंटे दिखाए गए, वो भी अंदलुस के साइंसदां इब्ने कातिब ने तैयार किया था। इब्ने रुश्द, जिन्हें जदीद फ़लसफ़े का बानी करार दिया जाता है, उनका ताल्लुक भी अंदलुस से था, जिन्होंने अरस्तू के फ़लसफ़ों को दोबारा ज़िंदा किया और जदीद फ़लसफ़े के रैशनलिज़म के कंसेप्ट को पेश किया। अजीम जोग्राफिया दां और नक्शा नवीस मोहम्मद अल इदरीसी ने भी अंदलुस के यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की थी, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला नक्शा बनाया और जिन्होंने कोलंबस से 400 सालों पहले अमेरिका का सफ़र किया था। इसी तरह की सैकड़ों मिसालें हैं जिन्हें अगर एक जगह तहरीर की जाएं तो सफ़ों के सफ़े भर जाएंगे। मुख्तसर ये कि मुस्लिम अंदलुस की अजीमुशान तहजीब के बतन से ही यूरोप में निशातुस्सानिया की पैदाइश हुई, और अगर अंदलुस न होता तो शायद आज यूरोप के तमाम तर तरक्की याफ्ता ईजादें, उलूम और फ़लसफ़े भी न होते। अंदलुस एक जगमगाता और ख्वाबों का शहर था, जिसमें बेशुमार दुकानें थीं। सार्फिन के लिए बेश कीमत और मनपसंद चीज़ें बनाई जाती थीं। कुर्तुबा में चमड़ा, रेशम, कागज़ और क्रिस्टल पैदा किए जाते थे, जिसकी तिजारत यूरोप और मुस्लिम दुनिया के साथ होती थी। अगर कोई यूरोपी मियारी तालीम हासिल करना चाहता तो वो अंदलुस आकर मुसलमानों के यूनिवर्सिटियों से फ़ायदा हासिल करता। अगर अंदलुस को उस वक्त का पूरी दुनिया का जदीद साइंसी इल्म और फ़लसफ़े का सेंटर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। लेकिन वक्त बहुत जल्द पलटा और अब मुस्लिम स्पेन का ज़वाल शुरू हो चुका था। हुक्मरां और उमरा अय्याश और माल व दौलत के हरीस हो गए और हुकूमत के खातिर मुसलमान आपस में ही लड़ पड़े। अब्दुर्रहमान की अजीम सल्तनत के टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए। अंदलुस की मुस्लिम रियासत 5 हिस्सों में बढ़ गई। हालत ये हो गई कि एक मुस्लिम रियासत दूसरे के खिलाफ ईसाइयों से मुआहदे करने लगे और आपस में ही साजिशों और जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। चुनांचा इसका फ़ायदा उठाते हुए अरागोन और फस्ताला की मजबूत मसीही हुकूमत वजूद में आई।
मसीही सल्तनत की मलका इजाबेला और फिस्ताला के बादशाह फ्रेडिनंद, जो शदीद मुस्लिम दुश्मन थे, इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और दो मसीही रियासतों को मिलाकर मसीही मजीद मजबूत हो गए। साल 1470 तक एक एक कर तमाम मुस्लिम रियासतें मुसलमानों के हाथों से निकलते चले गए और अब मुसलमान सिर्फ गरनाता में ही सिमट कर रह गए। अहले गरनाता को पता था कि पूरे अंदलुस में सिर्फ एक मुस्लिम रियासत बची है और अब ये लड़ाई मुसलमानों की बका और अंदलुस में इस्लाम को बचाने की है। लिहाजा गरनाता के बादशाह अबू अल हसन ने फ्रेडिनंद से दो दो हाथ करने के लिए मैदान जंग में उतर पड़ा। लेकिन इस नाजुक हालत में जब अबू अल हसन मैदान जंग में मसरूफ़ था, ऐन उसी वक्त उसके वली अहद अबू अब्दुल्लाह ने गरनाता में ही बगावत कर दी और तख्त पर काबिज हो गया। लिहाजा सुल्तान अबू अल हसन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। फ्रेडिनंद ने नातजुर्बा कार अबू अब्दुल्लाह से लोशा के मकाम पर जंग की और उसे भी शिकस्त हुई। अब एक एक कर अंदलुस के तमाम किले मुसलमानों के हाथों से निकलते चले गए। ईसाइयों ने मस्जिद कुर्तुबा को गिरजा में तब्दील कर दिया। फ्रेडिनंद ने एक फरमान जारी किया जिसके मुताबिक अगर कोई मुसलमान ईसाइयत कबूल करने से इनकार करता है तो उसे स्पेन से निकलना होगा। मुसलमानों के ज़मीन, जायदाद और मालो मता लूट लिए गए। अरबी ज़बान पर पाबंदी और औरतों के लिए हिजाब इस्तेमाल ना करना लाजमी करार दिया गया। मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। इस तरह मुसलमान मजबूर होकर अंदलुस से मुख्तलिफ मुल्कों में हिजरत कर गए, जबकि लाखों मुसलमानों को हिजरत के दौरान ही कत्ल कर दिया गया। ये 2 जनवरी साल 1492 का दिन था। अंदलुस में मुसलमानों के जवाल का आखिरी दिन आ चुका था। मसीहियों का बादशाह फ्रेडिनंद अपनी मलका इजाबेल के साथ अल हमरा के दरवाजे पर पहुंच गया। अबू अब्दुल्लाह ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें खोदी, उनकी हड्डियां निकाली, उन्हें संदूक में भरी, फिर खजाने इकट्ठा किए और ख़ानदान को साथ लिया और अल हमरा की चाबियां लेकर बाहर आया। ये वो दिन था जब तारीख करवट बदल रही थी और एक ऐसा अलमिया जन्म ले रहा था जो आज 530 बरसों बाद भी दुनिया के हर मुसलमानों की आंखों को गीली कर देता है। 2 बादशाह आमने सामने खड़े हो गए। एक बादशाह वो था जिसके आबाओ अजदाद ने 700 सालों पहले मुसलमानों के हाथों ये सरजमीन हारी थी और एक बादशाह वो था जिसके आबाओ अजदाद ने इस ज़मीन पर 782 साल हुकूमत की थी और यूरोप को जदीद मशीनों और उलूम का तोहफ़ा दिया था। ये दोनों अपने अपने तारीख के बोझ को कंधों पर लाद कर एक दूसरे के सामने खड़े थे। हारे हुए मुस्लिम बादशाह ने जब अल हमरा की चाबियां फ्रेडिनंद को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो 782 साल के बोझ ने उसके हाथ लरजा दिए और चाबियां ज़मीन पर गिर पड़ी। अबू अब्दुल्लाह चाबियां उठाने के लिए झुका, लेकिन फ्रेडिनंद ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, नहीं बादशाह नहीं, अल हमरा ऐसी दौलत है जिसके लिए हम तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए भी तैयार हैं। और फिर दोनों बादशाह एक साथ झुके और चाबियां उठाई। अबू अब्दुल्लाह अपने ख़ानदान के साथ गरनाता से निकला और गरनाता के सरहदों पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी पर रुका। गरनाता शहर उसके सामने बिखरा हुआ था और वो आखिरी बार अपना शहर देख रहा था। उससे बर्दाश्त न हुआ और उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। उसकी जहां दीदा माँ उसके साथ ही खड़ी थी, उसने गुस्से से बेटे की तरफ देखा और वो तारीखी अल्फाज बोली जो आने वाले वक्त में तारीख बन गया। माँ ने कहा, बेटा, जिस सल्तनत की तुम मर्दों की तरह हिफाजत न कर सके, अब उसके लिए औरतों की तरह आंसू ना बहाओ।